Hello friends and hello students. Welcome to my channel. Let's begin with part 2 of chapter number 12, Smart Charts. But before that, don't forget to like and subscribe my channel. So let's begin with the chapter. Hope you enjoy learning with me. Hello students. Today we will begin from page number 165 in this video. So on page number 165 we have a bar graph, you can see. So let us read the sum. Hot and cold. Have you seen the weather report on TV or in a newspaper? These are the two bar charts. These show the highest temperature in degrees Celsius in 4 cities on 2 different days. The cities are Delhi, Shimla, Bangalore and Jaisalmer. So this is a bar graph. Can you see this is a bar graph? So this is the bar graph of on 2 different dates, 1st June and 1st December, and it is a bar graph of 4 different cities, Delhi, Shimla, Bangalore and Jaisalmer, and it is showing the temperature in degrees Celsius. So we can see on 1st June Delhi, जून में क्या होती है, गर्मी होती है. सो दिल्ली में टेम्परेचर इज 33 डिग्री, in Shimla it is 22, Bangalore 28 and जैसलमेर it is 38 डिग्री. अब दिसंबर में कौन सा सीज़न होता है? दिसंबर में होता है विंटर. सो विंटर में व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली? 23, शिमला 10, बेंगलुरु 24 एंड जैसलमेर इज़ 25. सो अभी हमें ये दोनों बार चार्ट्स को देखकर यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट फ्रॉम द बार चार्ट which city is the hottest on 1st June. Yani 1st June, which is the hottest city, we can see it is Jaisalmer with how many degree temperature? 38 degrees. So what is the answer for first? Jaisalmer. Okay. Which city is the coldest on 1st December? Now this is December. December में सबसे coldest यानी सबसे ठंडा, जब ठंड होती है तो डिग्री कम हो जाती है, तो सबसे कम डिग्री का टेम्परेचर कहाँ है? शिमला में. सो शिमला इज द कोल्डेस्ट. Which city shows little change in temperature on the 2 days, 1st June and 1st December? Now here ये 1st June है, ये 1st December है. 1st June Delhi is 33 एंड दिसंबर में दिल्ली इज़ 23, यानी 10 डिग्री का डिफरेंस है. यहाँ पर 12 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 डिग्रीज का डिफरेंस है, और यहाँ पर मोर देन 10 डिग्रीज का डिफरेंस है, यानी 13 डिग्रीज का डिफरेंस है. तो सबसे कम डिफरेंस कितना है? बेंगलुरु का, ओनली 4 डिग्री. सो सबसे कम डिफरेंस कौन सी सिटी में है टेम्परेचर में? बेंगलुरु में. Okay, so this is how we read the bar chart and we answer the questions. अब आगे चलते हैं. Try yourself. On any one day, choose any 3 cities and record their temperature from TV or newspaper. Make a bar chart in your notebook and ask your friends a few questions about it. See if they understand your chart. Okay, so this you have to do on your own. So this is self activity that you have to do in homework. This you will do in textbook. This activity is this sum you will do in textbook. Okay. So now we will go to page number 166. On page number 166, it is given rabbits in Australia. Earlier there were no rabbits in Australia. Rabbits were brought
टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 1780, यानी उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स नहीं थे. एट दैट टाइम देयर वर नो एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया विच एट रैबिट्स, यानी रैबिट को जो खाते हैं ऐसे कोई एनिमल्स ऑस्ट्रेलिया में नहीं थे. So the rabbits began to multiply at a very fast rate. Imagine what they did to crops. यानी रैबिट्स क्या खाते हैं? क्रॉप्स खाते हैं, कैरेट्स खाते हैं. तो वो क्या करेंगे, जितने ज़्यादा होंगे रैबिट्स उतने कैरेट्स ज़्यादा खाएंगे. सो अब हमें इस टेबल में बताया गया है कि द टेबल शोज हाउ रैबिट ग्रू एवरी ईयर. यानी स्टार्टिंग में जब वो लेकर आए रैबिट, कितने रैबिट लेकर आए? 10. 1 ईयर के बाद कितने रैबिट्स हो गए? 18. 2 ईयर्स के बाद 32, 3 के बाद 58, 4 के बाद 108. अब हमें फाइंड करना है 5th ईयर और 6th ईयर में कितने रैबिट्स हो गए. तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट ईयर में जब लेकर आए 10 और फर्स्ट ईयर में कितने हो गए? +8, 10 + 8 18. ठीक है. फिर सेकेंड ईयर में 32 हो गए. ठीक है. सो 18 + 18 होता है 36, लेकिन ये 36 से कम है, 32 है. कितने? सो +18 + 14 करेंगे तो होगा 32, यानी ये 8 है. 8 + 8 हम करेंगे तो होगा 16, लेकिन 16 से 2 कम है 14. ओके. नेक्स्ट अब है 32. अब आप क्या करेंगे? 14 + 14 करेंगे. 14 + 14 इज 28, लेकिन उसमें से हमें कितने लेस रखने हैं? 2 लेस रखने हैं. तो कितना आएगा? 26. सो 18, 32 में से अगर 18 जाएगा तो 26 बचेगा. अब 26 + 26 इज 52, लेकिन हमें कितने लेस लेने हैं? 2 लेस लेने हैं, यानी 50. तो आप 58 - 32 करेंगे तो 26 आएगा. ठीक है. 58 + 50 करोगे तो 108 आएगा, एंड 108 - 58 करोगे तो 50 आएगा. अब यहाँ पर करेंगे हम 50 + 50 कितना होता है? 100, लेकिन उसमें से हमें कितने लेस लेने हैं? 2 लेस लेने हैं. तो 100 - 2 इज 98. Okay. Now 108 + 98 is 206. ठीक है. इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा. फिर 98 + 98 कितना होता है? 196, लेकिन हमें कितना कम लेना है? 2 कम लेना है, तो 194. ठीक है. अब 194, 206 + 194 विल गिव यू 400. तो 6 ईयर्स के बाद कितने रैबिट्स हो गए? 400 रैबिट्स हो गए. ठीक है. समझ आया? अब अगर हमें फाइंड करना है 7th ईयर में कितने रैबिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे? 194 + 194 इज 388, लेकिन हमें कितने लेस लेने हैं? 2 लेस, तो 386. तो 7th ईयर में कितने रैबिट्स होंगे? 786. आप इन दोनों को प्लस करेंगे. इन द सेम वे आप 8th, 9th और 10th ईयर के लिए फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें फाइंड करना नहीं है. सो नाउ अब इसमें हम नीचे क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ द रैबिट वाज. अब हमें उसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है. अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ द रैबिट्स इन द लास्ट ईयर, डबल द नंबर इन द लास्ट ईयर, 8 मोर देन द नंबर इन द लास्ट ईयर, मोर देन डबल द नंबर ऑफ द रैबिट्स. अभी यहाँ पर जब हमने प्लस किया, ठीक है, 8 + 8 कितना आता है? 16, लेकिन हमने कितना लेस लिया? 2 लेस, यानी डबल से थोड़ा सा कम. सो हमारा ऑप्शन में आंसर क्या होगा? अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स इन द लास्ट ईयर. तो डबल तो नहीं हुआ क्योंकि 8 + 8 होगा 16, लेकिन हमने 14 लिया है. फिर 8 मोर देन द नंबर इन द लास्ट ईयर, तो वो भी गलत है, हम लोग लेस देन डबल ले रहे हैं.
फिर मोर देन डबल द नंबर ऑफ द रैबिट्स इन द लास्ट ईयर, तो मोर तो है ही नहीं, हम तो कम ही ले रहे हैं. सो व्हाट इज आवर आंसर? ए. एट द एंड ऑफ 6 years द नंबर ऑफ रैबिट्स वॉज क्लोज टू, यानी 6 years में हमने फाइंड किया कितने रैबिट्स आ गए, अराउंड 400. आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट क्रॉस 1000. अब हमने देखा कि 7th ईयर में इतने हो गए, ठीक है. तो फिर 8 years नेक्स्ट होगा, तो नेक्स्ट ईयर में 1000 से प्लस हो जाएगा, तो 8 years. अब रैबिट कौन से ईयर में ऑस्ट्रेलिया में लाए थे? 1788. उसमें 8 years प्लस करेंगे, तो 1780 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 1788 में जो है रैबिट्स कितने हो जाएंगे? 1000 से प्लस हो जाएंगे. ओके, सो दिस सम ऑल्सो यू हैव टू डू इन टेक्स्ट बुक. मोस्टली ऑल द सम्स आर टू बी डन इन टेक्स्ट बुक. अभी हम आगे चलते हैं, फैमिली ट्री रीड करते हैं. ऑन पेज नंबर 167, माधव वेंट टू अ वेडिंग along with his parents. He met many relatives there, but he did not know everyone. He met his mother's grandfather, but found that her grandmother is not alive. He also found that her dadi's grandmother's mother is still alive and is more than 100 years old. Madhav got confused. He couldn't imagine his mother's grandmother's mother. So Madhav's mother made a family tree. ठीक है, माधव की मदर ने ये फैमिली ट्री बनाया है उसके लिए. ओके, यू कैन सी इट इन योर टेक्स्ट बुक फॉर हिम. ठीक है, अब हम रीड करते हैं आगे क्या है. माधव्स मदर हेल्प्ड हिम अंडरस्टैंड हर फैमिली विद द हेल्प ऑफ हिज ड्राइंग. यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट योर ओल्डर जनरेशन यूजिंग सच फैमिली ट्री. यानी वो आपको खुद करना है, लेकिन अभी आपको पीछे जो माधव की मदर ने फैमिली ट्री बनाया है उसको देख करके ये क्वेश्चन के आंसर्स देखने. आंसर दिस क्वेश्चन. हाउ मेनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव? हु इज शोभना? शी इज माधव्स मदर. ठीक है, तो दिस इज शोभना. तो शोभना को कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं? ये शोभना के पेरेंट्स हैं. ये दिस इज माधव, दिस इज माधव्स मदर. ठीक है, शोभना, दिस इज शोभनाज मदर एंड फादर. अब शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स कौन से हैं? शोभनाज नाना एंड शोभनाज नानी. फिर शोभनाज दादा एंड शोभनाज दादी. यानी कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं शोभना को? 4. ओके. हाउ मैनी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव हैव? यानी ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स को बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, तो दिस इज माधव. माधव के ग्रैंड पेरेंट्स ये है, ये माधव की मदर है, ये माधव के ग्रैंड पेरेंट्स हैं. सो ग्रैंड पेरेंट्स नहीं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ये है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. कितने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं माधव को? 12. हाउ मेनी एल्डर्स विल बी इन 7th generation of his family? ठीक है, अब ये है Madhav is first generation. You have to see in the textbook. Then Madhav's mother is second generation. फिर Madhav's grandparents are third generation. Great grandparents fourth. ये fifth. अब fifth generation. अब देखो हर एक generation में डबल हो रहा है. ये 1 है, 1 + 1 2. 2 का 2 + 2 4. ठीक है, तो और इधर 4 + 4 कितना होता है? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. यानी 5th जनरेशन में 8 हैं. तो 6th जनरेशन में कितने होंगे? 8 + 8 16. डबल हो जाएंगे हर एक जनरेशन में. तो 6th जनरेशन में कितने होंगे? 16. फिर 7th जनरेशन में और डबल हो जाएंगे. कितने? 16 + 16 इज 32. फिर 8th जनरेशन में 32 + 32 64 हो जाएंगे. ठीक है, सो 7th जनरेशन में कितने होंगे? 32 ग्रैंड पेरेंट्स. अब इफ ही टेक्स his family tree forward, in which generation he will find
128 एल्डर्स। अब 8th जनरेशन में तो हमने देखा कि 64 है। अब 9th जनरेशन में, 9th जनरेशन इज 64 + 64 128, यानी 9th जनरेशन में उसके कितने होंगे? 128 एल्डर्स होंगे। ठीक है, so this also you have to do in textbook. Now next, growth chart of a plant. So let us read. Amit showed a few seeds of moong dal in the ground. The height of the plant grew 1.4 centimeters in first 4 days. यानी ये देखो, जब उसने सो किया तो 0 सेंटीमीटर, 4 दिन के बाद 1.4. After that he started growing faster. Amit measured the height of the plant after every 4 days. So 4 days, 8 days, 12 days, 16, 20, यानी every 4 days उसने लेंथ मापी है प्लांट की. तो 4 days के बाद 1.4, 8 days के बाद 5.3, 12 days के बाद 9.5, 16 days के बाद 10.2, 20 days के बाद 10.9 सेंटीमीटर्स क्या है? हाइट है उसके प्लांट की. ठीक है, नाउ लुक एट द हाइट ऑफ ईच डॉट इन द सेंटीमीटर एंड चेक फ्रॉम द टेबल इफ ही हैज़. अब उसने ये जो लेंथ लिखी है सेंटीमीटर्स में प्लांट की, वो उसने अपने ग्राफ पर पॉइंट्स लगा दिए हैं. कैन यू सी पॉइंट्स? ठीक है, सो यहाँ पर है नंबर ऑफ डेज 4, 8, 12, 16, 20, और यहाँ पर है हाइट, यहाँ पर लेंथ ऑफ प्लांट, हाइट है यहाँ पर. सो 0 डे पर 0, फिर 4th डे पर जब उसने मेजर किया तो क्या था? 1.4, तो ये 1 है, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन 1 2 3 4, 5th पर बड़ी लाइन है, तो यहाँ पर होगा. ओके, यहाँ पर. फिर 8th डे पर 5.3, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर 5 है और उसके बाद 3 पॉइंट्स, 1 छोटी वाली 1 2 एंड थर्ड लाइन के बाद आप देखेंगे ये डॉट इसी लाइन में किया हुआ है. यू कैन यूज अ स्केल एंड सी दिस पॉइंट विल बी ऑन द 3rd पॉइंट. ठीक है, फिर 12th डे पर 9.5, दिस इज 9, और ये 1 2 3 4 और ये 5, 5th पॉइंट, 5th लाइन जो है वो बड़ी है, तो आप स्केल रख के देख लीजिएगा. यहाँ पर 9.5 पे ये डॉट किया हुआ है. 12th डेट पर 9.5, 16th डेट पर 10.2 और 20th डेट पर 10.9, यानी 11 पर देखो नहीं है, नीचे है 11 के डॉट. सो अब ये हमारा ग्राफ रेडी है. सो नाउ लेट अस आंसर द गिवन क्वेश्चंस. फाइंड आउट फ्रॉम द ग्रोथ चार्ट, यानी ये चार्ट को हमको रीड करके नीचे के क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. सो बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट, यानी सबसे ज़्यादा लेंथ का डिफरेंस प्लांट कौन से दिनों में बढ़ा है? यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है, इतना. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्लांट कौन से डेज में बढ़ा है? तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमें दिख रहा है यहाँ. ठीक है, सो इट इज 8 to 12 days. ठीक है, व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ द प्लांट ऑन 14th डे? गैस, यानी हमें एग्जैक्टली नहीं बताना, लेकिन हमें गैस करना है, अप्रॉक्सीमेटली बताना है. तो हमें बताया गया है एवरी 4 days का, तो हमें बताना है 14 कहाँ आता है? 12 और 16 डे के बीच में आता है 14th डे. अब ये इतना बड़ा है, सो 9.5 और 10.2 उसके बीच में ही बढ़ेगा कहीं. सो अप्रॉक्सीमेटली हमें बताना है, तो वो हम लोग ऐसा कर सकते हैं इसको 10.2 माइनस 9.5, हम ऐसा कर सकते हैं. तो इट विल बी अराउंड 0.7 आएगा. ठीक है, डिफरेंस 0.7 आएगा. तो यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं भी ये आएगा. तो 9.5 और 10 के बीच में 8 तो नहीं आएगा, 10.2 भी नहीं है, 10.5 बड़ा हो गया तो यही आएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विल द प्लांट
keep growing all the time, what will its length be on 100th day? तो हमें गैस करना है. तो अगर हम देखते हैं लास्ट 20th डे पे प्लांट है 10.9 सेंटीमीटर्स का, तो अगर हम यही सोचते हैं कि एवरी 20 डेज ये प्लांट इतना ही बढ़ेगा, तो एट द एंड ऑफ 100th डे प्लांट की हाइट हो जाएगी तो हम लोग गैस कर सकते हैं, तो शायद ये प्लांट 54.5 सेंटीमीटर जितना बड़ा हो जाएगा 100, शायद तक हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो, थोड़ा कम बड़ा हो. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर स्मार्ट चार्ट. ठीक है, सो वी विल do this sum also in textbook. Okay, hope you enjoyed learning with me. Thank you.